Good morning, everyone. Today we are going to ending the chapter of second of class 8 geography, that is land, soil and water resource. In last two classes we learn about the land and soil resources. Now today we are going to study the water resource. Water on the earth is of two types: fresh water and saline water. Saline water is unfit for human consumption. Fresh water ocean for only account for only about 2.5 of the water on the earth. Most of these is stored in ice sheet, glacier, in high mountain peaks, and only 1% of all water on the earth is available for human consumption. Freshwater is found as surface water in river, lakes and ponds, and so groundwater, which is accessed through well, spring and geyser. Freshwater is found in different states and constantly changing from one form to the other, means from liquid to gas, gas to solid. This is a continuous movement of water from land and the ocean to the atmosphere and back is called water cycle. Water resource of India. The main water resources in India are rainfall, river, lakes and groundwater. The main rivers are Ganga, Brahmaputra, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri and Narmada. Some of them, like the Ganga and the Brahmaputra and their tributaries, are snow-fed rivers are therefore perennial. It means that the river above mentioned they are get their water from snow melting from mountainous glacier, so that ever feed they yearly ever feed of water, so that called perennial river. On the other hand, the river of the peninsular plateau region are seasonal rivers that depend on the rainfall for their water. Conservation of water resource. Scarcity of water is a major challenge many in many parts of the world today. Water scarcity is partially caused by increase in population and the rising demand for water. Other factors include water pollution, drying up of water resources, failure of the monsoon, overexploitation, and careless use of water resources. Conservation of water is therefore a global need. The way in which water can be conserved one as follow. Water pollution has to be controlled by taking necessary steps such as tracking toxic influence before discharging them into water. Scientific and controlled irrigation should be encouraged to prevent wastage of water. Drip irrigation and sprinkle save more water than canal or tube well irrigation. Rainwater harvesting can be practiced by constructing tank and pit to prevent runoff. Mulching and plugging gullies also help conserve water. Constructing dam will also help store water from agriculture and domestic purpose. Afforestation will reduce runoff and replenish underground water. Land, soil, वाटर रिसोर्स। पिछले क्लास में हम लोग इसके दो मुख्य टॉपिक जो है लैंड एंड सॉइल उसको हम लोग देख चुके हैं, उसके बारे में समझ चुके हैं। आज हम वाटर रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी पे पाए जाने वाले
जो जल है, ये वाटर है, ये दो प्रकार की पाई जाती है, एक फ्रेश वाटर, एक सलाइन वाटर। सलाइन वाटर वाटर जो है वो मानव के उपयोग के लिए अनफिट पाई जाती है, क्योंकि उसमें अधिकतर मात्रा सैलिनिटी की होती है। वहीं पे फ्रेश वाटर जो है उसका मात्र 2.5% ही अर्थ पे अवेलेबल है, जो कि वो भी आइस शीट और ग्लेशियर में भी मिलता है, और उनमें से सिर्फ केवल 1% ही है पानी जो मानव के लिए उपलब्ध है उपयोग के लिए, जो कि नदी, तालाब, झीलें और भूमिगत जल स्रोतों के रूप में हमें मानव को प्राप्त होता है। किसके द्वारा? कुओं, स्प्रिंगर और गीजर के तरफ से। फ्रेश वाटर जो है वो अलग अलग रूप में पाया जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस में, और ये लगातार बदलता रहता है। ये अपने इस स्वरूप को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदलने की प्रक्रिया को और बाद में फिर पुनः वापस वो वाटर के फॉर्म में आ जाता है। इसी को हम लोग वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया। भारत में जल संसाधन मुख्य रूप से वर्षा, नदी, झीलें और भूमिगत जल स्रोतों से प्राप्त होती है। इसका सबसे मुख्य अगर नदियों के नाम लिया जाए भारत के, तो वह है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा। ये जो पूरे भारत को क्या करती हैं, लगभग जल प्रदान करने की कोशिश करती हैं। इनमें से कुछ ऐसी भी रिवर हैं जो कि सदा पानी से भरी रहती हैं। उनकी सहायक नदियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और ये बर्फ़ से बनी हुई नदियाँ हैं, बर्फ़ के पिघलने से बनी हुई नदियाँ हैं, जैसे गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसलिए इनको सदावाहिनी या पेरेनियल रिवर भी कहा जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे भी रिवर हैं जो कि खास करके पेनिनसुला या फिर ऋतुवत नदियाँ, या फिर जो मौसम के अनुसार सूख जाने वाली नदियाँ, जो कि खास करके दक्षिण भारत की तरफ में पाई जाने वाली अधिकांश नदियाँ इस तरह की नदियाँ होती हैं, जो कि अपना जल केवल बरसात के समय में बारिश के द्वारा प्राप्त कर पाती हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। आज के विश्व में सबसे बड़ा मुख्य चैलेंज या चुनौती सभी के सामने जल की उपलब्धता की कमी है। पूरे विश्व के अधिकांश हिस्सों में अगर कहा जाए, आज सबसे बड़ी समस्या बन के रखी हुई है स्वच्छ जल की उपलब्धता। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है विश्व की, वैसे वैसे पानी या जल की मांग भी जो है खास करके बढ़ते जा रही है, और साथ ही साथ इसी के साथ में पॉल्यूशन भी बढ़ते जा रहा है। मानव जो है इसके उपयोग में निरंतर बिना किसी सोच समझ के इसका उपयोग करते जा रहा है। कई संसाधन जहाँ से जल प्राप्त होते थे वो सूखने के कगार पे आ चुके हैं, और इसमें कई बार मानसून का फेल होना भी एक कारण भी माना जा सकता है कि जल संकट हमारे यहाँ पे उपलब्ध हो रहा है। हालांकि पूरे विश्व स्तर पे आज जल संरक्षण के बारे में सोचना या उस पर कदम उठाना ज़रूरी हो चुका है। कुछ रास्ते हैं जिनके सहारे हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। पहला, जल प्रदूषण को रोका जा सकता है। कैसे? तो जल प्रदूषण को रोका जा सकता है जब फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो कचरे होते हैं, जो हानिकारक जो केमिकल होते हैं, उनको पहले ही रोक देना, उनको नदियों में जल में प्रवाहित नहीं करना। दूसरा तरीका है वैज्ञानिक तरीकों से हम खेतों में सिंचाई की व्यवस्था करें। हम उसमें जल की जो वेस्टेज है, बर्बादी है, उसको रोक सकते हैं। इसमें ड्रिप इरिगेशन, मतलब पाइप के थ्रू खेतों में पानी को ले जाकर पहुंचाना, या स्प्रिंकल कहने का मतलब है कि छोटे छोटे बूंदों में फव्वारों के रूप में खेतों में पानी देना। इससे क्या हो सकता है कि कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा खेत को हम इरिगेट कर सकते हैं। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये बड़े पैमाने पर अगर चलाया जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि जो बरसात का पानी जो बारिश में पड़ता है, उसको हम रोक कर टैंक और छोटे से गड्ढों में उसको बहने से रोक सकते हैं। उसको छोटे गड्ढे रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सकता है, रोक सकते हैं, जिससे वो बाद में ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। मल्चिंग एंड प्लगिंग, जहाँ पे हम
नहीं कर सकते, जहाँ पे मल्चिंग और प्लगिंग के मेथड के थ्रू पानी को रोका जा सकता है। जैसे कि गली इरोजन जहाँ पे होते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े के सहारे हम पानी की स्पीड को कम करते हैं। वहीं पे अगर हम चेक डैम बनाते हैं तो क्या होगा कि पानी सालों भर वहाँ पे जमा भी रहेगी और वहाँ पे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज भी करेगी, जो कि बाद में हम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद डैम और कई पानी के संग्रह के निर्माण करना, जो कि बाद में घरेलू उपयोग या फिर खेत के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। उसके बाद वानिकीकरण, मतलब कि जितने जंगल हट गए हैं, जहाँ ज़रूरत हो सके वहाँ पे वनों को लगाना। इससे क्या होगा कि जो बरसात के समय में कई जगहों पे बाढ़ आ जाते हैं, कई जगहों से बारिश होने के कारण पानी तेज़ गति से निकल जाती है। अगर वहाँ पे पेड़ पौधे होंगे तो उनकी न केवल उनकी गति को ही रोकेंगे वो, बल्कि पेड़ पौधों के कारण वो पानी जो है उनके रूट के सहारे ग्राउंड वाटर में जा सकती है।